Hello everyone. I hope you are fine at your places. So we have completed our previous chapter. Now we are going to start the new chapter which is control components. So it is written as module 3 in your syllabus. So we are now going to start this. So it is very easy to understand this topic. So so let's start it. Basically, what is control system components? What are they used for in the system? So basically, as per the definition written here, they are employed or introduced in a system to perform a specific function or purpose in the system. Basically, what happened in the control system, the devices which are used to convert the process variable in the one form to the another, also known as transducers. Basically, what are transducers? Transducers can also be defined as a device which transforms the energy from one form to another. So basically, we are going to study about some transducers which act as a control components in our control system. So what first of all we need to know that which are the devices which are used as transducers as a control components in our system. They are potentiometers, AC servo motors, DC servo motors, technogenerators, stepper motors, magnetic amplifier, differential transformer. So these are some transducers devices. So we are not going to study each and everything. We have to study according to the syllabus like AC servo motors, DC servo motors, techno generators, stepper motor, and magnetic amplifier. There are some more topics also we'll cover step by step. So in the today topic, we are going to start with the servo motors, where we will see the different types of servo motors. First, if we proceed, we know that before servo motor, we have to understand the servo mechanism. So let's see. What do you mean by servo mechanism? Basically, servo mechanism means servo plus mechanism means uh, it is defined as a closed loop control system in which small input power controls a large output power. एक छोटी सी पावर किसको कंट्रोल कर रही है? बड़ी आउटपुट पावर को. एक इनपुट दी है वो छोटी पावर हम ले रहे हैं और आउटपुट है हमारी बड़ी पावर इन अ स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट मैनर. ओके, एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं. ओके. So the control variable means the output variable in some mechanical variable. अब देखो कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकता है? मैकेनिकल वेरिएबल की जैसे एक्ट कर सकता है, जैसे पिस्टन हो गया या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन. इस फॉर्म में हमें आउटपुट वेरिएबल मिल रहा है. ठीक है, मीन्स कोई वेलोसिटी मिल रही है, पोजीशन मिल रही है या एक्सेलरेशन मिल रही है. तो बेसिकली जो सर्वो सिस्टम्स होते हैं ना, वो यूज कहाँ होते हैं? हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स में. जहाँ पे क्या होता है, वहां पर हमारा ये जो सिस्टम है वो किस पे वर्क करता है? हमारे एरर सिग्नल पे. क्यों? क्योंकि द एरर सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिराइव द मोटर्स यूज्ड इन सर्वो मोटर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मोटर्स यूज होते हैं इस चीज में, उनको कहा जाता है सर्वो मोटर. ओके. So there is one more point. Servo motors usually derive the final control element. ये मोटर्स क्या करते हैं? फाइनली जो कंट्रोल एलिमेंट होता है उसके साथ वर्क करते हैं. These motors are coupled to the output shaft, that is load. आउटपुट शाफ्ट क्या है हमारा यहाँ? लोड एंड. ठीक है, through gear train for power matching. So I've written very detailed form also here what actually servo mechanism is acting in the servo motors. So these motors are used to convert, क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमें इनपुट की फॉर्म पे अप्लाई किया है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बेसिकली इट मे बी एंगुलर वेलोसिटी और मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट, वो हमारी आउटपुट आ रही है. ओके. सो इट इज द ब्लॉक डायग्राम. Basic block diagram, you can say that's our motor. Here the input error detector, or we can say where the error signal will approach. It is the amplifier which will amplify the signal to the servo motor, and this is the feedback loop and will get the resultant output. So now started. What are the advantages of servo motor? यहाँ पे क्या होता है? हमें हाई टॉर्क मिलती है. हमारे जब भी हमारी सर्वो मोटर परफॉर्म करती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है ना, वो
कंट्रोल्ड वेलोसिटी होती है, इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ये। और ये हमें हर साइज में मिल सकती है। इसका ना जो ऑपरेशन होता है ज्यादा नॉइजी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे स्मूथली होता है। एंड स्मूथर रोटेशन एट लोअर लेवल ऑल्सो, जब हमारी इनपुट बिल्कुल मतलब फ्रिक्वेंसी रेंज कम है तब भी इसका एक्शन बिल्कुल स्मूथर है। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये ज्यादा एक्सपेंसिव है देन स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। रिक्वायर्ड ट्यूनिंग ऑफ द कंट्रोल लूप पैरामीटर्स, हर टाइम हमें ट्यून करना पड़ता है जो भी हमारे कंट्रोल लूप के पैरामीटर्स है उनके पैरामीटर्स को चेंज करके देखना पड़ता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मतलब हमारी आउटपुट के हिसाब से हमारी ट्यूनिंग होती है। नॉट सुटेबल फॉर hazardous environment or in vacuum. Okay, so let's see the application also. They are used in radar system and process controller, जो आजकल यूज हो रहे हैं बेसिकली at a very high level. They are used in computers and robotics. As we know, this technology is already in use, and also used in machine tools में भी use होते हैं. Basically motors use होती हैं, ये servo motors, and tracking and guidance system में भी use होते हैं. So let's see, servo motor are basically are two types: AC servo motor and DC servo motors. So let's start with AC servo motors. तो होता क्या है, AC servo motor के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टार्टर, एक होता है रोटर. अब स्टार्टर से ऐसे समझो ये स्टेशनरी पार्ट है, रोटर मीन्स ये रोटेटिंग पार्ट है. अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो फेस इंडक्शन मोटर्स होते हैं और स्टार्टर की क्या होती है, दो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स होती हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो वाइंडिंग्स होती है ना, वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे मतलब इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती हैं. आप लोग देखोगे डायग्राम में भी. और एक वाइंडिंग को हम कहते हैं मेन या रेफरेंस वाइंडिंग, और उसको एक्साइट किया जाता है कांस्टेंट एसी वोल्टेज से. ठीक है, देन अदर वाइंडिंग, जो दूसरी वाइंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाइंडिंग, उसको एक्साइट किया जाता है वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज से ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. जिस फ्रीक्वेंसी से हम एक्साइट करते हैं रेफरेंस वाइंडिंग को, उसी फ्रीक्वेंसी से हम एक्साइट करते हैं अपनी कंट्रोल वाइंडिंग को. यहाँ पे उसकी जो एक्साइटेशन है वो कांस्टेंट वोल्टेज से होती है, यहाँ पे उसकी एक्साइटेशन किससे होती है, वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज. ओके, एज ही रेफरेंस वाइंडिंग, बट द फेस डिस्प्लेसमेंट इज, इन दोनों वाइंडिंग का फेस डिस्प्लेसमेंट मींस 90 डिग्री एंगल का जो इलेक्ट्रिकल एंगल इनके बीच आ रहा है, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि इनका फेस डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, 90 डिग्री एंगल. सो ये देखो उसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिक व्यू है. ये हमारा वोल्टेज है सर्वो एम्पलीफायर का. ठीक है, और ये हमारा कंट्रोल फेस है, ये हमारा हाई रेजिस्टेंट केज रोटर है. उसके बाद नीचे हमारी एसी सप्लाई है, ये रेफरेंस वाइंडिंग बोलते हैं इसको. ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली एक ओवरव्यू आपका एसी सर्वो मोटर का होगा क्या. अब उसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज हमने दी है ना कंट्रोल वाइंडिंग को, वो हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, एम्पलीफायर से. सर्वो एम्पलीफायर बोलेंगे बेसिकली. ठीक है, जो डायरेक्शन होती है ना रोटेशन की रोटर की, वो डिपेंड किस पे करती है, फेस रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेजेस. मींस वोल्टेजेस और फेस के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है. अब आप एक वो चीज नोट करना कि जो रोटर होता है ना सर्वो मोटर का, वो दो टाइप्स के हम डिफाइन करते हैं. एक होता है स्क्विरल केज रोटर और होता है ड्रैग कप टाइप रोटर. अब मैंने उसकी भी डिटेल लिखी है, यू कैन गो थ्रू दिस डिटेल्स कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, एंड आई हैव आल्सो ड्रॉ द डायग्राम. तो एक बार देख लेते हैं. बेसिकली जो स्क्विरल केज रोटर होता है ना, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है. ठीक है, आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो, डायग्राम भी नीचे. तो क्या होता है, यहीं से देखते हैं. ये देखो स्क्विरल केज रोटर क्या होता है, इसकी लेंथ भी बहुत लार्ज होती है, डायमीटर भी छोटा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. क्यों होता है, क्योंकि जो एयर गैप होता है ना स्क्विरल केज का, वो छोटा रखा गया होता है. ठीक है, अब ड्रैग कप की बात कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो एयर गैप्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे दो एयर गैप्स होते हैं. फॉर अ रोटर अ कप ऑफ नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल इज यूज्ड. इसके रोटर में क्या होता है, बेसिकली नॉन कंडक्टिंग, इसमें ना नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल इसलिए लगाया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ना वो कोलैप्स नहीं करे.
उसके बाद एक स्टेशनरी आयरन कोर होता है, ये देखो स्टेशनरी आयरन कोर होता है यहाँ पे, ये होता है, ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, बिटवीन द कंडक्टिंग कप, ये बिटवीन द कंडक्टिंग कप के बीच प्लेस किया गया हुआ, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली इसलिए रखा होता है टू कंप्लीट द मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, वो मीन्स ड्रैग कप का वो बहुत हाई होता है, मीन्स अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, बहुत हाई। तो यही डिफरेंस है इन दोनों का, स्क्विरल केज एंड ड्रैग कप रोटर का। तो जितना मैंने लिखा है उतना इनफ है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है हमारी एसी सर्वो मोटर्स की। देखो क्या होता क्या बेसिकली, अब हमारे पास ये कहता है कि जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना टू फेस इंडक्शन मोटर की, वो डिपेंड किस पे करती है, हमारा जो रिएक्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करती है। तो जो जितना हाई रेजिस्टेंस होगा ना, फॉर हाई रेजिस्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, मींस अगर रेजिस्टेंस हाई है और रिएक्टेंस लो है, ये देख लो रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो क्या हो रहा है हमारा लार्ज रेशियो टू एक्स टू आर आ रहा है, ओके। तो इट बिकम्स नॉन लीनियर एज शोन इन अबव, ये देखो नॉन लीनियर बन गया ना अगर लार्ज आ रहा है, अगर स्मॉल है तो इट इज समहाउ लीनियर, बट अगर बहुत ज्यादा रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो जो है बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा नॉन लीनियर पाथ बन जाता है। तो ये ग्राफ है टॉर्क और स्पीड के बीच का। तो जो नेगेटिव स्लोप है ना, अब यहाँ पे देख लो नेगेटिव स्लोप है ना, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो रोटर का रेजिस्टेंस है ना वो हाई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है मोटर को एक पॉजिटिव डैम्पिंग, किसके लिए, क्यों उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छे से हो जाए। तो जो कर्व होता है वो क्या होता है, कर्व इज लीनियर फॉर ऑलमोस्ट वेरियस कंट्रोल वोल्टेजेस, ये याद रखना। तो ये बेसिकली टॉर्क और स्पीड के बीच में वैल्यूज प्लॉट किया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये V1 V2 V3, यहाँ पे जस्ट V1 V2 अलग से वो हो गया, वो जब सब वो आप लोग देख लेना, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। तो ये देखो इसकी जो स्पीड, ये इसकी वोल्टेजेस कैसे लिखी जाएंगी, सबसे ज्यादा होगी V4 की, फिर V3 की, फिर V2 की, फिर V1 की, ओके। तो उसी तरीके से ये सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देखना। तो डीसी सर्वो मोटर्स की बात करते हैं। डीसी सर्वो मोटर्स आर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स, और इनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट पढ़ा ना आपने, कंसेप्ट क्या होता है उसका, वही चीज है। अब आप यहाँ देखो क्या कह रहा है, कहते हैं यहाँ पे जो फिगर ए मैंने यहाँ पे डिनोट किया, ये वाली फिगर को, वो बता रहा है कि जो कनेक्शंस है ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी सर्वो मोटर्स के बीच में बता रहा है। और ये देखो ये बेसिकली एक फिगर है, ठीक है। और ये वाली फिगर हमें क्या बता रही है, ये बता रहा है आर्मेचर ऑफ एमएमएफ मीन मोशनल मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्साइटेशन फील्ड एमएफ इन क्वाड्रेचर इन अ डीसी मशीन, ये बता रहा। तो बेसिकली इसको हमने ज्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ पे बेसिक सी चीज है, एवरीथिंग इज रिटन इन योर नोट्स, बेसिकली थ्योरी यू हैव टू गो थ्रू इट। और इसकी टॉर्क, अगर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये इस तरीके से आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर्मेचर होता है ना डीसी सर्वो मोटर का, उसका जो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, तो जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो लीनियर होगी। अगर डीसी सब मोटर्स जो हैं वो कंट्रोल कर, मींस अगर नहीं, means DC सब motors can be controlled from armature side और from field, means हम उसको दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर साइड से भी और फील्ड वाली साइड से भी। उसके बाद क्या है कि जो फील्ड कंट्रोल डीसी सब मोटर्स है ना, अगर उसकी रेशियो होती है L/R की लार्ज है, and the time constant for field circuit is large, due to which response is also slow, hence they are not commonly used। इसलिए हम डीसी मोटर्स को यूज नहीं करते, क्योंकि इनका जो L/R रेशियो अगर ज्यादा है और टाइम कांस्टेंट फील्ड सर्किट का लार्ज है, ड्यू टू विच हम इसको यूज नहीं करते। तो यहाँ पे भी मीन्स वहां पे क्या होता, सबसे बड़ा वाला सबसे ज्यादा ज्यादा था, V4 ज्यादा था एसी में, फिर V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर V3 है, इसलिए हम यूज नहीं करते। सो दिस इज इट। In next chapter we will see more parameters. Thank you for watching this video.